Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 5.2 is going on, and students, in this exercise some questions have been solved in previous video. So today I will complete all the remaining question of exercise 5.2, which is based on the multiplication of algebraic expression. And as all of you know that in this exercise we have to learn the multiplication of lots of types of algebraic expression, like monomial to monomial, monomial to binomial, monomial to trinomial, and as well as binomial to monomial, binomial to binomial, and etc. Like lots of concept of this exercise you have to multiply with the different types of polynomial. So let's start, students. In this question number 4, find the product. Find the product means you have to multiply a plus b and a minus b. Students, actually this is the example of binomial. You have to multiply binomial to binomial, because here there are, in this algebraic expression there are two terms, a and b, so it is called binomial. And here also this is two terms, so it is also called binomial. So student, I have explained, I have told that there are two methods if you want to try to multiply of an algebraic expression. So first method is your horizontal method and second method is your column method. So we will apply column method for solving this question. So first of all you have to write a plus b, and second you have to write a minus b. So student, you have to multiply here b minus b to b. First of all you have to multiply minus b to a, then we will get minus ab, because a into b is ab, and here minus plus minus b into b square. Then after that we have to multiply a into b, then we will get ab and plus a into a, that is a square. Okay, so we can write, student, here minus ab and plus ab. So both terms will be cancelled, because minus ab plus ab means equal to 0. Okay, or you may write ab minus ab, because here this ab is this and this ab is this, and ab minus ab is equal to 0. So in both the cases we can write 0, and here minus b square plus a square, or you may write a square minus b square, and this is the answer. Okay, now we are moving our next question. Question number C. 7x square y x square minus x square y minus 7x square xy square, 7xy square and 7xy plus 1. So student, we can write, if we have to apply column method, so first of all you have to write this algebraic expression in above, and this algebraic expression will written below of this algebraic expression, like
7xy plus 1. Now we have to write student here 1 has written, so we have to write this algebraic expression as it is, because if we multiply these algebraic expression by 1, listen carefully, if you want to multiply these algebraic expression by 1, then you will get the same result. Okay, so you have to write this algebraic expression as it is. Now we have to multiply this algebraic expression by this algebraic expression. So 7 into 7 is equal to 49 plus 49. Student, here 7 7 is 49 and x into x square into x is equal to x cube. So we can write x cube y, and y into y means y square. Okay, now we have to multiply plus minus minus, and 7 7 is 49, and here x into x means x square, and y into y square means y cube. Okay, so we can write 7x square y minus 7xy square plus 59x cube y square minus 59x square y cube. Okay, let me check the answer is correct or not. It's 5.2 4B part 4C. 49x cube y square minus 59x square y cube plus 7 square y minus 7 square. Sorry. Student, I have explained in previous video that your answer may be not matched with the answer sheet, because some terms will be I have written in first, because but this answer is also correct, and your answer sheet answer is 49 x cube y square minus 59 x square y cube plus 7x square y minus 7xy square. Student, don't be confused, because both the answer is correct. Listen carefully बच्चों, दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, बस आपके आंसर शीट में ये वाला टर्म पहले लिखा है और ये वाला टर्म बाद में लिखा है. ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर ही सही है, आप कोई भी टर्म पहले बाद में लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो टर्म आपका सारे टर्म जो है आंसर शीट से मैच होने चाहिए. आंसर शीट से अगर मैच हो रहा है तो समझिए आपका आंसर सही है. ठीक है, तो देखिए सारे टर्म मैच हो रहे थे, बस क्या हुआ कि ये वाला टर्म पहले लिख दिया गया, ये वाला टर्म बाद में लिख दिया गया, दोनों आंसर सही है. ओके, सो स्टूडेंट, बिफोर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन योर कॉपी या टेक स्क्रीनशॉट. नाउ स्टूडेंट, वी आर मूविंग another question of this exercise. Question number 5 is you have to again find the project, but student, this question is types of you have to multiply a trinomial to a trinomial, because in this algebraic expression have three terms, because here term is 1 2 and 3, and here 1 2 and 3. So it is the example of you have to multiply trinomial to trinomial. So again we will apply the method that is called column method. So we can write, first you have to write this algebraic expression, then after you have to write this algebraic expression as it is. Okay, now student, you have to step by step you have to multiply. First of all, you have to multiply this term 4z by all this term, then after you have to multiply this term by all these terms, and then last you have to multiply this term by all this term. Okay, so let's start. 4 5 is 20, and z into z means z square. Student, it is very easy that z into z means z power m plus 1, that is z power 2,
So we have to write direct that z into z means z square. Now plus 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 4 4 जा 16, y into z yz, and plus 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 4 3 जा 12, x into z means xz. Okay, now we have to multiply this term by this term, so we can write 3 5 is 15, 3 5 is 15, yz, then we have to write 3 4 is 12, pi square, 12 y square, and in last 3 3 is 9 xy plus 3 3 is 9 xy. Okay, so in last we have to multiply this term by all this term though, so 2 5 is 10, 2 5 is 10 xz. So we can write here 2 5 is 10 xz, and 2 4 is 8 xy, and in last 2 3 is 6, 2 3 is 6 x square. Okay, 2 3 is 6 x square. Now we have to add all these terms. So first of all we have to pick and add all these terms one by one. So let's start. First of all you have to write the term, you have to pick the term whose literal term is x square. Student, बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म कहीं पर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखिए x स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ वन टर्म है 6x स्क्वायर, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 6x स्क्वायर, ये हो गया ना। फिर अब देखिए y स्क्वायर वाला टर्म भी नहीं दिख रहा है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए एक ही टर्म है 12y स्क्वायर, उसको ऐसे लिख दिया, और z स्क्वायर वाला भी एक ही टर्म है तो लिख दिया 20z स्क्वायर। तो ये तो हो गया। अब देखिए बच्चों एक्स वाई वाला टर्म देखना है, एक्स वाई, देखिए एक्स वाई वाला टर्म देखिए 2 टाइम्स यहाँ दिख रहा है, देखिए 9xy और 8xy, 9 और 8 कितना होता है बच्चों 17, तो यहाँ लिखेंगे 17xy। फिर yz वाला टर्म देखिए, yz यहाँ भी है, यहाँ पे 16 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों 31yz। उसके बाद yz के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे xz वाला टर्म लिखेंगे, तो xz वाला यहाँ पर 12xz है और 10xz है, पर प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 22xz। So this is the final answer. And student, no need to, if your answer is not matched with answer sheet, so first of all you have to check that all these terms have come, is coming, is your answer, then after that your answer will be correct. So I have to check only the all these terms is coming or not. Fifth A, student, here the answer is 6x square, 17xy and 22xz, 12y square and 31yz and 20z square. So student, don't worry, your answer is correct. Your answer is correct, but answer is not matched because this term is I have written in first and this term I have written in second. So it is no need to worry because your all these terms is matching your answer sheet. So it is your answer is also correct. बच्चों ये आंसर भी सही है क्योंकि इसके सारे टर्म मैच हो रहे हैं, बस क्या है कि
एक टर्म पहले आ रहा है एक टर्म बाद में आ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है आपका, आपके सारे टर्म मैच हो रहे हैं तो इसलिए सही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग सम अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर डी। You have to product, you have to find the product x square plus y square minus z square and x minus y plus z. So again we will apply the method whose name is column method. So we can write x square plus y square minus z square and x minus y plus z. So we have to multiply all this term by all this term. So plus minus minus z into z square z cube, because z square into z power 1। बच्चों यहाँ पे कोई पावर नहीं दिख रहा है तो हम क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। तो देखिए बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो क्या लिखेंगे z क्यूब। बच्चों ये सब आपको डायरेक्ट अब करना है, ये सब हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा आप पहले से जानते। देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस जेड और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड आएगा, और फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर जेड लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही देखिए माइनस माइनस प्लस वाई जेड स्क्वायर, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब, उसके बाद माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए इसको करेंगे, एक्स को इससे करेंगे, एक्स इंटू जेड स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स जेड स्क्वायर, फिर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब। अब सबको प्लस करना है, देखिए तो एक्स क्यूब वाला टर्म पहले लिखेंगे, एक्स क्यूब हो गया, फिर वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे, एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड और माइनस जेड स्क्वायर एक्स या एक्स जेड स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद लाइक टर्म देखना है, इसमें कोई भी लाइक टर्म आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि सब अनलाइक टर्म है, तो इसको एज इट इज इसको लिखते जाएंगे ऐसे। देखिए इसके बाद देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, एक्स वाला टर्म हो गया ना, एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड और एक्स जेड स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं पहले, तो बाद में लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर जेड फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर जेड स्क्वायर टर्म लिखेंगे ये वाला प्लस वाई जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यही आंसर आ रहा होगा, बस इसमें फर्क क्या है कि कोई टर्म पहले लिखा होगा कोई टर्म बाद में लिखा होगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके टर्म सारे मैच होने चाहिए। आपके जो टर्म है देखिए बच्चों एक्स क्यूब आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, देखिए ये टर्म मिल गया, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये टर्म मिल गया, माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर एंड माइनस जेड क्यूब। देखिए सारे टर्म मैच हो रहे हैं, सारे टर्म मैच हो रहे हैं, बस फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है बच्चों कि कोई टर्म पहले लिखा है कोई टर्म बाद में लिखा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, आंसर शीट से आपको सारे टर्म को मैच करना है, सारे टर्म को मैच करना है विथ साइन। साइन का मतलब कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, सारे टर्म को
साइन के साथ मैच करना है। अगर साइन में भी डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं आपको गलत है। देखिए मैंने अभी जितना भी टर्म्स को मैच किया विद साइन मैच किया, ठीक है। तो सारे टर्म विद साइन मैच हो रहे हैं एक दूसरे से, बस कोई टर्म पहले लिखा है कोई टर्म बाद में लिखा है, तब भी आपका आंसर सही है। इसलिए नो नीड टू वरी, आपको भी ऐसे ही करना है। जब भी आपको ऐसा शीट में आपको आंसर मैच करना होगा तो सारे टर्म को मैच करना विद साइन। अगर सारे टर्म विद साइन मैच हो जाएंगे तो समझिए आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर द मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन योर कॉपी और टेक स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगेन यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, बट इन दिस क्वेश्चन you have to multiply a polynomial to a polynomial, because in these algebraic expression have more than 3 terms. So as all of you know that if an algebraic expression have more than 3 terms then it is called multinomial or polynomial. So बच्चों इसमें आपको polynomial को polynomial से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें 3 से ज़्यादा टर्म है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल का आपको प्रोडक्ट निकालना है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, तो वही हम कॉलम मेथड यूज करने जा रहे हैं। देखिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक बात आप बच्चों नोट कर लीजिए, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डाउट है तो आप पहले उसको रफ में किया करिए, ठीक है। रफ में करने के बाद जैसे अभी इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किए हैं, जैसे 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, उनको कम से कम एक क्वेश्चन आप जरूर लगाइए रफ कॉपी में अपने मन से बाय योरसेल्फ, और उसको देखिए, उसको समझिए कि कैसे उसमें हो रहा है और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्लस इसके साथ साथ आपका आंसर शीट से हो सकता है आंसर मैच ना हो, क्योंकि कोई टर्म पहले लिखा होगा कोई टर्म बाद में लिखा होगा, लेकिन वो सभी टर्म मैच जरूर होने चाहिए। कोई पहले लिखा कोई बाद में लिखा इससे नहीं मतलब है, आपका टर्म मैच होना चाहिए विद साइन कि वो प्लस ए स्क्वायर भी लिखा है और माइनस ए स्क्वायर भी, इस तरह से, ठीक है। तो वही हम इसमें यूज करेंगे। देखिए a प्लस बी माइनस सी एंड माइनस 1, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2ca 1 से करेंगे तो वही आएगा, प्लस सिर्फ आपको ऑपरेटर चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस 2bc माइनस प्लस माइनस 2ab माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 2c स्क्वायर a माइनस प्लस माइनस 2bc स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2abc एंड माइनस a स्क्वायर c, ठीक है। फिर देखिए बच्चों प्लस 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 2cab या 2abc भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस प्लस 2b और bc को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर c, प्लस इसको करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद इसको करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लास्ट वाले टर्म को करेंगे a को c, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस 2a स्क्वायर c, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा c। फिर देखिए बच्चों a को इससे करेंगे 2bc से तो हो जाएगा बच्चों 2abc, फिर नेक्स्ट 2a स्क्वायर b एंड देन लास्ट a क्यूब। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, सारे टर्म को हम ऐड करेंगे। देखिए a क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं पर भी a क्यूब वाला टर्म नहीं लिखा है तो उसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे a क्यूब। इसके बाद देखिए कहीं b क्यूब आपको दिख रहा है, b क्यूब भी नहीं है, c क्यूब भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम
ए स्क्वायर बी वाला टर्म देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। ए स्क्वायर बी, देखिए ए स्क्वायर बी यहाँ पे है, नहीं है। इधर देखिए बच्चों, इधर भी नहीं है। इधर देखिए, हाँ यहाँ पे है, ए स्क्वायर भी यहाँ पे है, और इसके बाद ये नीचे ए स्क्वायर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ 1a स्क्वायर भी है बच्चों, देखिए ए स्क्वायर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब 1a स्क्वायर भी है, और यहाँ पर 2a स्क्वायर भी है। तो 1 + 2 मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, 3a स्क्वायर भी। अब देखिए बच्चों, ए स्क्वायर वाला टर्म हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर वाला टर्म है, बट ए स्क्वायर मतलब सिंगल ए स्क्वायर वाला टर्म है, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, -a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए बी स्क्वायर वाला टर्म देखिए कहाँ कहाँ पे है, नहीं यहाँ पे भी ए स्क्वायर सी वाला टर्म है। तो देखिए बच्चों, ए स्क्वायर सी यहाँ पे है, नहीं है। इधर है बच्चों ए स्क्वायर सी -a स्क्वायर सी + 2a स्क्वायर सी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कोई भी डिजिट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो -1 -a स्क्वायर सी और + 2a स्क्वायर सी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बच्चों कि -1 में से -1 + 2 कितना होगा, +1 होगा, और a स्क्वायर सी लिख देंगे, तो इसका मतलब a स्क्वायर सी बचेगा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आपको लिखना क्या है, a स्क्वायर सी लिखना है, ठीक है, a स्क्वायर सी लिखना है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों, a स्क्वायर सी वाला टर्म हो गया। ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से करना तो टाइम तो लगेगा। अब इसमें ए स्क्वायर बी वाला टर्म हो गया, ए स्क्वायर वाला टर्म हो गया, ए स्क्वायर सी वाला टर्म हो गया। अब ए स्क्वायर टर्म ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब हम क्या पिक करेंगे, बी स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे, कहाँ कहाँ बी स्क्वायर टर्म है। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर टर्म नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। देखिए बच्चों 2ab स्क्वायर लिखा है, यहाँ 2b स्क्वायर सी लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2ab स्क्वायर एंड +2b स्क्वायर सी, और कहीं पर भी बी स्क्वायर टर्म नहीं है। फिर देखिए सी स्क्वायर टर्म कहाँ कहाँ पे है, देखिए एक तो यहाँ पे है सी स्क्वायर टर्म -2bc स्क्वायर, और एक यहाँ पे है -2c स्क्वायर a, ठीक है। अब सी स्क्वायर का भी टर्म हो गया। अब हम देखेंगे कि ए बी वाला टर्म कहाँ कहाँ पे, देखिए ए बी यहाँ पे है और कहीं नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों -2ab, फिर BC वाला टर्म लिखेंगे -2BC, और फिर -2CA, ये वाला टर्म ही हो गया। अब लास्ट में देखेंगे कि तीनों वेरिएबल कहाँ मिल रहे। देखिए ABC यहाँ पे भी मिल रहा है, ABC यहाँ पे भी मिल रहा है, और ABC यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे -2abc, यहाँ +2abc है, तो ये टर्म कैंसिल हो सकता है, लेकिन इसको अभी यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो ये 2abc देखिए बच्चों, डायरेक्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक तो यहाँ पे -2abc लिखा हुआ है, एक यहाँ पे +2abc लिखा हुआ है, और एक यहाँ पे भी +2abc लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, ये -2 ये +2 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि -2 + 2 0 होता है, या -2 + 2 0 होता है, या 2 -2 कहेंगे तो भी 0 होगा। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, +2abc तो बचा। तो ये वाला टर्म आपको लास्ट में लिखना है। अब आंसर मैच करेंगे हम विद साइन। अगर आपका आंसर मैच हो रहा है विद साइन, सभी टर्म मैच हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका आंसर एकदम सही है। बट ये हो सकता है कि आंसर में कोई टर्म आगे पीछे लिखा हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, a क्यूब आ रहा है, सही है, -a स्क्वायर आ रहा है, ये भी सही है, +a स्क्वायर सी आ रहा है, ये भी सही है, +3ab स्क्वायर आ रहा है, ये देखिए 3a स्क्वायर भी आ रहा है, ये भी सही है, +2ab स्क्वायर आ रहा है, ये भी सही है, +2abc आ रहा है, ये भी सही है, -2ab आ रहा है, -2ab, ये देखिए -2ab, -2bc, -2ca भी आ रहा है, +2b स्क्वायर सी भी आ रहा है, -2bc स्क्वायर भी आ रहा है, एंड -2ac स्क्वायर भी आ रहा है। ac स्क्वायर आ रहा है बच्चों, देखिए 2c स्क्वायर, a को हम -2ac स्क्वायर भी कह सकते हैं, दोनों सही है। तो आप चाहे इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं।
तो बच्चों सारे आंसर मिल रहे हैं, सारे टर्म विद साइन मिल रहे हैं, तो अब आपका आंसर ये सही हो गया। ठीक है, इस तरह से आंसर शीट से आपको आंसर मैच करना है, 1 बाय 1 सभी टर्म को आंसर मैच करना है और साइन के साथ आंसर को मैच करना है। अगर सभी आंसर मैच हो जाएंगे, ऐसे सभी आंसर में जो भी टर्म मैच हो जाएगा विद साइन, तो आपका सही माना जाएगा। और यही आपको स्ट्रेटजी लगाना है इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड टुडेज concept of how can we multiply the different type of algebra expression with different type of algebra expression. Okay, so students, thank you very much for being with us, and in next video I will explain some more concept which is given in this chapter. So till then, goodbye.